کہ جو میں تھوڑی بہت نظامت کر رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں ان کا 10% بھی نہیں. سلمان صدیقی بھائی جو ہے ان کو دیکھ دیکھ کے ٹپس لیتے ہیں. نظامت کار، بلا کے نظامت کار، اور پھر ان کے انداز شاعری دیکھیں آپ تو پھر مزہ ہی آ جاتا ہے. اور ابھی انہوں نے کتنا اور کس قدر پڑھا ہے سمرین ندیم سمر کو، اس حوالے سے گفتگو کیجیے. آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. صدر گرامی قدر کی اجازت سے، میزبان ادب کی اجازت سے، محترمہ سمرین ندیم سمر کی کتاب پہ بات کرنے سے پہلے ایک بات یہ عرض کر دوں کہ کسی تقریب کا اعتبار اس وقت قائم ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد صدارت پر کون موجود ہے. دوسری بات اس تقریب کی اعتبار کی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کتاب پر یا اس شخصیت پر گفتگو کرنے والے کون. آپ دیکھ لیجیے کتنی عمدہ گفتگو کی، آپ جذبے نے گفتگو کی، افتخار ولی صاحب نے کی، اور جستا جستا گفتگو کوٹے یہ بھی لگاتے رہے شاہد صاحب گفتگو کے. اور ایک سب سے آخری اور سب سے اہم بات یہ ہے اس تقریب کے اعتبار کی کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اس تقریب میں کون کون شریک ہیں. میں نام نہیں لوں گا، اس شہر کے بہت بہت شعراء موجود ہیں اور وہ سماعت کر رہے ہیں سمرین ندیم سمر کی کتاب کی تقریب پر ہونے والی گفتگو کو. اور حاضرین محفل، ایک بات اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ان کی دوسری کتاب ہے، پہلی کتاب خوشبو خیال اور اس کے بعد آرزو کا دیا، یہ دوسری کتاب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی کتاب سے دوسری کتاب تک آتے آتے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو سفر کیا ہے، کچھ نہ کچھ سفر کیا ہے. اور اس میں اب اس میں جیسے کہ کہا بھی گیا کہ نظمیں ہیں، غزلیں ہیں اور قطعات بھی ہیں. ایک اہم بات دوسری یہ ہے کہ بہت سی خواتین جو پہلا یا دوسرا شعری مجموعہ لاتی ہیں تو ان کے شعری مجموعے میں ظاہر ہے بہت سے انسان مشاورت کرتا ہے، ہم مشاورت کرتے ہیں، بڑے اہم لوگ مشاورت کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ شعر اس طرح کا ہے، کس طرح ہونا چاہیے. تو وہ مشاورت بعض اوقات کلام میں نظر آنے لگتی ہے. کسی خاتون کا مجموعہ کلام آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی مرد بول رہا ہے. مرد کا بولنا جو ہے وہ اپنی جگہ ایک قابل غور بات ہے، لیکن سمرین ندیم سمر کی کتاب کے بارے میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی مرد نہیں بول رہا، اس میں ایک عورت بول رہی ہے. نسائی حیثیت کا اظہار ہے، عورت کے جو محسوسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، وہ اس میں بدجاتہ موجود ہیں. دراصل یہ شدت احساس کی شاعری ہے، سادہ بیانی ہے، استعارے اور تنبیہات اور پیچیدہ باتیں بالکل نہیں ہیں. اور یہ ایکسٹمپور شاعری اس لیے ہے کہ جو ان کے ذہن میں آیا، جو انہوں نے سوچا، وہ لکھ کے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس لکھے ہوئے کو اور پڑھے ہوئے کو کس خانے میں رکھتے ہیں. اب جیسے ایک بات یہ کہی گئی کہ اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا روبوٹ وہ سب کچھ بتاتا رہے گا آپ کو جو آپ اس سے پوچھتے جائیں گے، مگر وہ سب کچھ بتائے گا جو اس کو فیڈ کیا ہوا ہے. شاعری ایسا ہنر ہے کہ جس کے بارے میں وہ اس کے آگے تو کیا آدمی کے برابر بھی کھڑا نہیں کر سکتا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا روبوٹ ہے. اس لیے کہ تخلیق تو پھر آدمی اپنے ذہن سے خلق کرتا ہے، وہ خلق کی بات تو ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکتا. تو اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ذکر کہیں اس کتاب میں کسی مضمون نگار نے کیا ہے، اور لیکن اس کے حوالے سے ہم سمرین ندیم سمر کی شاعری کو دیکھیں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جذبات کو، محسوسات کو، تجربات کو، مشاہدات کو اس طرح لکھا ہے جس طرح انہوں نے لکھنا چاہا ہے. اب یہ آپ اس میں تلاش کر سکتے ہیں بہت سی باتیں، آپ اس میں عروضی مسائل تلاش کر سکتے ہیں، آپ قافیہ ردیف کے مسائل تلاش کرتے ہیں، آپ بحر کے مسائل تلاش کر سکتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شاعری میں، خصوصاً اردو شاعری میں، عبرانی، سریانی اور قدیم فارسی زبان میں
पाबंदी नहीं थी, ना बयान की पाबंदी थी, ना रिफ की पाबंदी थी, ना काफिये की पाबंदी थी। लेकिन जब ये शायरी अजम में आई तो अहले अजम ने इसको पाबंदियों में कैद कर दिया। उन्होंने कहा कि रवानी बहर होनी चाहिए और इसमें जनाब अली वज़न होना चाहिए, सबसे अहम काफिया होना चाहिए, लतीफ होना चाहिए। इसका मतलब है कि उसने पाबंद कर दिया। अजम का जो शायर जब लिखता है तो वो बहुत पाबंदियों के साथ लिख रहा होता है और उसको बड़ी मुश्किल पेश आती है। आदमी सीखते 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 आगे बढ़ता है और फिर ऐसा एक वक्त ऐसा आता है कि वो ऐसा कलाम लिखने लगता है जो अहले नज़र को चौंका देता है। अब इसमें इनकी इस किताब का मैंने मुताला किया, इन्होंने भी मुझे PDF भेजी थी। तो PDF में उस तरह पढ़ने में लुत्फ नहीं आता जिस तरह किताब खोल के रख कर पढ़ने आता। लेकिन जब मजबूरी होती है कि भाई आदमी नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि तेज रफ्तार है, कैसे किस किस को वहां से पहुंचा सकता है आदमी, तो मैंने PDF में कोशिश की पूरी पढ़ने की। उसमें कुछ अशार बड़े काबिल जिक्र हैं जिनका जिक्र होना चाहिए और जिन पर बात भी होनी चाहिए। तलाश का अवसर इनकी शायरी में आया है, लिख रही है, मैं थक गई हूँ ढूंढ कर तेरा मकान, नहीं मैं थक गई हूँ ढूंढ कर तेरा मकान सबर, बराबर है। मैं थक गई हूँ ढूंढ कर तेरा मकान सबर, घर तेरा किस गली में है और किस मकान में है। अब देखिए घर और मकान की जो तफरीक उन्होंने शायर में इस शेर में नज्म की है, वे कमाल है। देखिए घर मकान नहीं होता, हर मकान घर नहीं। घर अफराद से बनता है, घर अफराद से बनता है, उनके आपस के मैग्नेटिज्म से बनता है, आपस की तवज्जो से, मोहब्बत से बनता है। लेकिन उसके अलावा वो मकान कहलाएगा, घर नहीं कहलाएगा। तो ये शेर इनका मुझे बहुत उम्दा लगा। अब इन्होंने कोशिश की है कि जाती दुख, जमाने के दुख, सामाजिक मामला, माशरती मामला, ये इसमें कलमबंद करने और इन्होंने जो कुछ महसूस किया, जो देखा, वो अपने अंदाज से इस किताब में लिख दिया। समईन एक किताब में लिखती हैं कि एक शेर में उन्होंने लिखा, मसीहा अच्छा हो फिर भी शिफा नहीं होती। मसीहा अच्छा हो फिर भी शिफा नहीं होती, और मरीज़ इश्क की कोई दवा नहीं होती। कहीं कहीं इनके यहाँ स्पार्क है, अचानक एक स्पार्क की शक्ल में एक शेर आता है, वो आपको धोखा देता है और पूरी किताब पे भारी पड़ जाता है वो शेर। और इसमें एक अहम बात यह है कि यही वजह है कि हमें लगता है कि इनकी शायरी में फ्लक्चुएशन बहुत है, अप्स एंड डाउन बहुत सारे हैं। जहाँ जहाँ ये तख्लीकी ख्याल की उरूज पर हैं, वहाँ इन्होंने अच्छा शेर लिख दिया है। जहाँ जहाँ इन्होंने सोचा, जो कलमबंद किया, वो भी इस किताब में पूरी तौर पर मौजूद है। ये शेर आप देखिए इनका, मैंने नोट किया, वैसे तो आते जाते हैं मुझ में हजार गम, ऐसे तो आते जाते हैं मुझ में हजार गम, बस एक तेरा है गम जो मुझे मुस्तकिल हुआ, तेरा है गम जो मुझे मुस्तकिल हुआ। और हाजिर महफिल, चूंकि इतनी सारी बात हो चुकी, बाद में बात करने में ये बात है कि वो अहम बातें जो की जानी चाहिए वो सब लोग कर जाते हैं। ये मसला सब इंसाफ कर चुकी, सखार भाई ने, आबिद साहब ने, खलील फारूक ने बात और कुछ जो बयान, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ अपने इजहारी के टोटे शाहिद साहब भी पेश करते रहे, मुस्तकिल और चीज तकरीर को लेके आगे चलते रहे। लेकिन एक बात तय है भाई कि सब यहाँ बड़े अहम शायर मौजूद हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन ऐसे शुरा मौजूद हैं कि जिनको लोग सुनने के लिए बतौर ख़ास उनकी महफिल में जाते हैं। दिनों पहले हमने भी सुना, बहुत से शुरा बहुत कम आते हैं। एक बात अहम है कि शेर में लताफत होनी चाहिए, तरन्नुम होना चाहिए, नगमगी होनी चाहिए, और सबसे अहम बात, जैसा कि नईम समीर की किताब का अनुमान, रिदम होना चाहिए। इसको अब ये बातें आपके तजुर्बे से, आपके मताले से, आप किसको पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए हमारे पास पूरी एक लिस्ट है, तवील लिस्ट है उस्तादिज़ा की भी, और इस दौर के शुअरा की भी, और इससे पहले के शुअरा की भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी दोस्त समीर नदीम समर 2 किताबें आ गई, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि तीसरी किताब आएगी वो आपको खास तौर पर चौंकाएगी कि किसी शायर ने एक कलाम लिखा। ये आपने अच्छा इशारा दिया।
2 शेर और मैंने इनके निकाले थे वो अच्छा इसमें एक मसला और भी है। देखिए शायरी की किताब जो शख्स छापता है पब्लिशर, शायर अली शायर यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन मैं उनसे शिकायत कर रहा हूँ उनके ग़याब में उन तक पहुँच जाए ये बात कि शायर पब्लिशर की बड़ी जिम्मेदारी है बहुत से अल्फाज की दुरुस्ती की। एक शेर में एक लफ्ज़ गलत टाइप हुआ है लेकिन वो शायर की नज़र से नहीं गुजरा। एक शेर है उसका मिसरा है, नूर ही नूर है फैला मेरे आमालों से। अब ये अमल जो है वो तो वाहिद है, उसकी जमा आमाल है, पर आमाल की जमा नहीं हो सकती, ठीक है ना। वो इसलिए उनको देखना चाहिए था कि उनके कंपोजर ने आमालों लिख दिया है, वो ऐसे ही चला गया। असल में ये गलतियां वो हैं जो शायर के खाते में चली जाती हैं, तो ये इसलिए इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और मशावरत नसीब शुरा से करनी चाहिए। पब्लिशर को भी बिठा के पहले समझना चाहिए कि भैया तुम तो किसी चीज़ को मुनासिब समझ रहे हो तो हमें बता दो, हम उसको दुरुस्त कर लेंगे। अपनी बातों का लिखने में गलती हो जाती है आदमी से। तो ये सब बातें हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आपकी दूसरी किताब आई, आपने मोहब्बत से तकरीब सजाई, दोस्तों को बुलाया, सबसे आपका ताल्लुक भी हो गया, सब आपसे मिल भी लिए, आपको जान भी पाए कि कतर में बैठी एक शायरा ऐसी है जो शायरी कर रही है और उसको झपवा भी रही है। बहुत मुबारक हो आपको, सदा बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की आपने सलमान साहब। मैंने जैसे कि कहा था, बहुत शुक्रिया सलमान साहब, कहा था कि आपको इनकी गुफ्तगू सुन के भी मज़ा आएगा। अभी मैं किताब मुझे नहीं मिली तो मुझे नहीं पता था सारे वर्ग जो माशाल्लाह शादाब भाई ने भी लिखा है और ज़किया रानी है तो, और फिर एक नई दिल्ली की यूनिवर्सिटी उधर के भी एक प्रोफेसर हैं उन्होंने भी लिखे। तो आप ज़रूर पढ़िएगा ये किताब। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि सहले मुमतना। आप बात कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा मैं आपको? ठीक है। सलमान भाई ने जैसे कहा और तो उन्होंने कहा कि सहले मुमतना में और सलीस उर्दू सलीस अल्फाज शकील अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। तो शेर मुझे याद इसलिए नहीं हुआ कि मैंने किताब यहीं ली। और जैसे कि सलमान भाई ने बताया कि PDF में हकीकत है आपको भी होगा कि पढ़ने में मज़ा नहीं आता। अच्छा, मैं आज की इस तकरीब की अपनी सावल संगत जो है उसकी चेयरपर्सन है, ठीक है। तो मैं इनसे मुल्तमस हूँ आप भी आके शुक्रिया है आपका। अगर नाम आपको नहीं भी याद हो तो आप अदा करें क्योंकि बड़े मोहतरम और बड़े जगह हमारे शोर हैं सारे और ये कम शिरकत करते हैं मुशायरों में भी, लेकिन आपकी तकरीब में आए, ठीक है। हाँ शर्मीन अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी संगीत तकरीब में आप लोगों को शिरकत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों ने इसको आगे कामयाब बनाया और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूँगी सैर साहब का जिन्होंने आके मेरी इज़्ज़त बख्शी, मेरी इस तकरीब को 4 चांद लगाए उन्होंने। और बस मेरी इस तकरीब का इस तंजीम का मकसद ये है कि आप सब तंजीमों को साथ लेकर चलना और इस तरीके के मैं प्रोग्राम अरेंज करती हूँ। आप सबके साथ की ज़रूरत है, आप सबकी मोहब्बतों की ज़रूरत है। एक मिनट बात करते रहो, माइक उनको ये बेटा जो है इसकी यही हरकत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। देखें आपने मुख्तसर लेकिन सबका शुक्रिया अदा कर दिया। अच्छा, अब जो है ज़ाहिर इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। आज की इस तकरीब की सदारत किस शख्सियत ने मैंने बताया आपको तो कर रहे हैं हमारे कदावर शख्सियत। अदबी दुनिया का इनसे बड़ा नाम इस वक्त हमारे पास नहीं है, चाहे हम पाकिस्तान या हिंदुस्तान या पूरी अदबी दुनिया में। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ। एक तो आपने इस तकरीब में, और मुझे पता है बहुत ही मुख्तसर और जाहिर है बहुत देर हो गई है हमारे, मैं मुल्तमिस हूँ। मैं बैठ जाता हूँ, मैं पकड़ लूँ।